हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड. सो लेट्स स्टार्ट रे डायग्राम्स ऑफ कन्वेक्स मिरर. ठीक है, रे डायग्राम ऑफ कन्वेक्स मिरर. सो वी विल स्टार्ट विथ रे डायग्राम of convex mirror. Who is talking in between? Ray diagram of convex mirror. There are only two ray diagrams of convex mirror. Concave के कितने बनाए थे बाबू? 6. And convex के only 2. ठीक है, सिर्फ 2. 6 and 2. How many ray diagrams of 8 ray diagrams in case of spherical mirror? And is 8 ray diagrams से you have to do all the sums, numericals. Keeping all the ray diagrams in your mind, you have to do sums. ठीक है, तो let's start with convex mirror. First, number 1, I will write I will keep my object at infinity. पहले object को infinity पे रखेंगे. How I will make? First I will make a convex mirror. Now in case of convex mirror, beta, Oishani, where is my non-reflecting side? This side or this side? This side. So I will do tine, and I will make a pole, focus and center of curvature. But you are drawing with a scale and a pencil. This is must. So see, you Babu, you have to do शानवी P इधर है तो इक्वल डिस्टेंस में F, इक्वल डिस्टेंस में C. 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, 1 1, 1.5 3 3, whatever you take, this distance should be equal. ठीक है, and from scale only you have to draw this line, otherwise आंसर नहीं आ सकता है. ठीक है, फर्स्ट मेक दिस वन. बोलिए, वापिस बोलो. ना, स्फेयर तो इधर बन रहा है तो एफ और सी इधर ही होगा. ये तो appears to meet होगा तो डॉट डॉट करके इधर लेके आएंगे. 3 3 ले लो, 2 2 ले लो, योर इच्छा. डिस्टेंस इक्वल ही থাকতে হবে because এটা এটা ইকুয়াল থাকে and this is double of this one. Make it. अच्छा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा? इन्फिनिटी पे. इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर कहीं पे. तो याद है इन्फिनिटी वाला मैंने तुम लोग को कहा था, कहाँ पे रखोगे? बहुत दूर कहीं इन्फिनिटी पे. दिस इज माई ऑब्जेक्ट, वेरी फार वेरी फार. नाउ लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड. सो लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, देन व्हाट आई हैव टू मेक? इधर देखो सब, अगर लाइट इधर से आ रहा है तो पैरेलल पैरेलल लाइट यहाँ तक, पैरेलल लाइट यहाँ से. लाइट इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. जो लाइट पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के बाबू, आफ्टर रिफ्लेक्शन व्हाट हैपेंस? फोकस से पास होगी, appears to meet at focus in case of convex. So it will go, it will reflect back, bye bye, it will reflect back, it will reflect back, bye bye. But what I will do, I will make dotted lines, tick 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 tick. This is my image, appears to meet at focus. And I will make arrows. If you miss arrow, you will lose half marks or full marks. According to CBSE boards में half marks cut होगा because light is coming in this direction and reflecting back in this direction. Light is coming in this direction and reflecting back in this direction. If you don't put arrows, how a person can understand light is coming from this side or this side? You have to put arrow that coming and going. And these lights are appear to meet at this focus. Using scale, everything scale, dotted lines, scale, scale. And you write at infinity. This is my object side, infinity. Now object name you have to give A, B. This is object. Now Babu, image, what you have to write? Final right side or down, image characteristics.
image, 3 characteristics you have to write. Image position. What is the position of the image? Image to ito focus. What is the size of the image? What is the nature of the image? See, Payal, virtual erect, dutoi. Manjot, can you say what is the position of my image? कहाँ पे डॉटेड लाइंस मीट कर रही है? फोकस. तो वेयर इज द इमेज फॉर्म? एट एफ. सो आई विल राइट पोजिशन ऑफ द इमेज एट एफ. पहले ये बना लो फिर उसको. इमेज कहाँ पे बना? एट फोकस. डॉट पॉइंट साइज छोटा सा कहाँ पे बना था ये? एट एफ. अब नेक्स्ट मंजोत, साइज छोटा है, बहुत छोटा है कि बहुत एनलार्ज है? कैसा साइज दिख रहा है? इतना छोटा है कि हम लिख सकते हैं पॉइंट साइज का बना है. हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज. डॉट सा बनाए हो तुम तो कितना छोटा है? पॉइंट साइज्ड. पॉइंट साइज्ड कॉमा हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा. कन्वेक्स मिरर में सब चीज छोटे छोटे होंगे, एकदम हाईली डिमिनिश्ड, छोट एकदम कुछ की. और नेचर तो वो तो एक्सपेरिमेंट से पता लगता है कि इसमें दोनों में दो ही कन्वेक्स मिरर के ड्राइंग है. दोनों मिरर का ड्राइंग में वर्चुअल इरेक्ट. वर्चुअल इरेक्ट सीधा. इरेक्ट कभी भी टेढ़ी इमेज नहीं होती है, इरेक्टेड इमेज रहती है. तो आई विल राइट वर्चुअल एंड इरेक्ट. Virtual and erect. Done. Sure done. This is done. तो इस इमेज से फुल मार्क्स 3. ठीक है. তো ইমেজটা তো সব গড়বড় হয়ে গেছে, তাই জন্য আমি সব মুছে গেছে. अच्छा, एक चीज याद रखना, इसमें कन्वेक्स मिरर में सारी इरेक्ट होती है और सब छोटा साइज का बनता है. डिमिनिश्ड, वर्चुअल इरेक्ट. ठीक है. सेकेंड रे डायग्राम. नंबर टू ऑब्जेक्ट. चलो ऑब्जेक्ट को थोड़ा क्लोज लेके आते हैं. पहले तो कहाँ पे था ऑब्जेक्ट? फर्स्ट कोথায় ছিল? एट इंफिनिटी. अब थोड़ा कौन क्लोज लेके आओ. तो बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल कहीं पे भी रख सकते हो. पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी दिखता हुआ. थोड़ा पास में तो इधर लाओगे ना, इस साइड नहीं जाना है हम लोग को. ऑब्जेक्ट हर समय उस साइड. बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट को तुम लेफ्ट साइड ही रखोगे. तो ऑब्जेक्ट क्या है? बिटवीन व्हाट? infinity and pole. Infinity and pole. Now again convex mirror কিভাবে draw করব? সানভি, this one. reflection কোথায় হবে? reflection এদিকে. shade কোথায় করব? pole কোথায় করব? ঠিক আছে. এবার এফ এদিকে, সি এদিকে. কনসেপ্ট ক্লিয়ার রাখবে যে রিফ্লেকশন আউটওয়ার্ড হয় কনভেক্সে, রিফ্লেকশন এদিকে হয়, শেডেড এদিকে ভেতরের দিকে থাকে. এবার একটা প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস. দিস ইজ মাই প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস. ओके. अब चलो ऑब्जेक्ट रखते हैं बियॉन्ड सी. कहीं पे भी ऑब्जेक्ट ऐसी जगह रखेंगे जहां दिखेगा. कहीं पे भी इधर रख दो. दिस इज माई ऑब्जेक्ट. ठीक है. ऑब्जेक्ट का नाम क्या देंगे? ए बी. दिस इज माई ऑब्जेक्ट. नाउ two things we have to make from this object.
पहले यहाँ तक कंप्लीट करो पहले, नहीं तो देख लो तुम लोग का कैसा बन रहा है, एक बार देख लो बाबू। पहला लाइन ऐसा होगा, इधर देख लो पहले पूरा मेरा ड्राइंग, फिर मैं बैक कर दूंगी। सी, पहले एक लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, appears to meet or will meet, appears to meet, तो ये लाइन रिफ्लेक्ट करके ऐसा चल जाएगा, बट appears to meet at focus। तो मैं स्केल रख के क्या करूंगी, स्केल रख के कुछ ऐसा करूंगी कि जिसमें फोकस भी कवर होगा, ये भी कवर होगा। सो आई विल मेक, हाउ आई विल मेक, आई विल कीप अ बिग स्केल ओवर हियर, और स्केल रख के मैं फोकस के साथ इसको टान के दूंगी, ऐसा टानूंगी कि मेरा इधर भी डॉटेड लाइंस आएगा, इधर स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये खराब ना हो इसीलिए ये इधर जो स्ट्रेट लाइन बनेगा इधर डॉटेड बनेगा, स्ट्रेट इधर और डॉटेड इधर, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन फर्स्ट। ये सेकंड सुनो, जो इसका हेड, मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीन चीज को कवर करना है। दैट मीन्स अ लाइन विच इज कमिंग towards the center of curvature will go from the center of curvature, यानी इनको कवर करना है। बाबू सेकंड वाला क्या करना है, मैं इस लाइन को छोड़ रही हूँ, वापस बना रही हूँ, इधर देखो, फर्स्ट ड्राइंग समझ आया, a line coming parallel to the principal axis will go back and dotted line से फोकस में मिलाना है। सेकंड, जो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही निकल जाएगी। तो सेकंड लाइन ऐसा बनाना है, बट मैं ऐसा नहीं बना पाऊंगी क्योंकि यहां से लेके यहां तक डॉटेड बनाना है और यहां से लेके यहां तक बोल्ड लाइन बनाना है। तो मेरा तो ये बोल्ड लाइन यहीं तक रुक जाएगा। तुम्हारे पास स्केल रहेगा तो स्केल से आप कैसे बनाओगे, स्केल रखोगे, यहां तक बोल्ड लाइन बनाओगे और यहां तक क्या बनाओगे, डॉटेड लाइंस। ठीक है, अभी मैं इसको यहाँ पे छेड़छाड़ करने जाऊंगी तो मेरा डॉटेड लाइन सी पे नहीं मैच होगा। तो आई विल मेक स्ट्रेट हेयर एंड आई विल मेक टू एरोज। बोलो एरोज क्या दूंगी, आया भी गया भी। अब इमेज कहाँ बना, इमेज जहां दोनों लाइन मिली है, इस पॉइंट पे दोनों लाइन मिली है। तो जो इमेज बना, इमेज को देखो इस पॉइंट पे दोनों इमेज फॉर्म हुई है। तो जहां इमेज बन रही है, image is erect above the principal axis or down the principal axis, above the principal axis. So this is my image, it is erect, but it is quite smaller than the object. My image is smaller, diminished, but it is erect, सीधा है, उल्टा नहीं है। So this is my image, it is formed between P and F, it is virtual erect, but it is diminished, छोटका है। ठीक है, समझ गए। तो ऐसे ही बनानी है आपको, ए भी लिखनी है। तो अब इमेज का नाम क्या दूं, ए बी दूं या कुछ चेंज करके, चेंज, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, दिस इज माई इमेज। क्लियर। फिर इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना पड़ेगा। इमेज पोजीशन बोलो तो सानवी, पोजीशन को था इमेज है बिटवीन पी एंड एफ, वेरी गुड, बिटवीन पी एंड एफ। साइज रोकतीमा बोलो, डिमिनिश्ड। और एक तो क्या था, पोजीशन साइज, नेचर कैसा है इसका, वर्चुअल इरेक्ट। ओके बाबू, ड्रॉ। ओके, नाउ hello, my video is on, so listen carefully. Next, for concave and convex there are some sign convention. sign जानना जरूरी है कि कब हम किस चीज को पॉजिटिव ले रहे हैं, कब किस चीज को नेगेटिव ले रहे हैं। एंड यूजेस, ये दो पहले टॉपिक पढ़ाना है। नंबर 1 यूजेस एंड नंबर 2 साइन कन्वेंशन। पहले साइन के बारे में बताती हूँ क्या है। इधर देखो, सबसे पहले हम लोग कॉन्केव मिरर को लेते हैं। बताओ तुषार,
विच मिरर इज दिस? वेरी गुड, कन्वेक्स। क्यों? क्योंकि आउटवर्ड्स में रिफ्लेक्शन होगा। विच मिरर? क्योंकि इनवर्ड्स में रिफ्लेक्शन होगा। चम्मच के भीतर में रिफ्लेक्शन होगा, भीतर, केव, केव तो मतलब भीतर। अगर इनवर्ड्स में रिफ्लेक्शन होगा केव के भीतर तो कनकेव, केव के भीतर। और बाहर अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो कन्वेक्स। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इधर देखो। अब साइन में कोई गड़बड़ किया, अगर कोई फोकस लूज किया, कंसंट्रेशन लूज किया, यू विल लूज मेनी थिंग, बहुत कुछ लूज करोगे। ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के बीचों बीच पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। अब ऑब्जेक्ट ऑलवेज किस साइड में होता है, लेफ्ट की राइट? लेफ्ट। तो ऑब्जेक्ट एनीथिंग, एनी, आइदर यू, मतलब आइदर ऑब्जेक्ट और इमेज, कोई भी चीज अगर लेफ्ट में होती है, पोल के लेफ्ट में होती है, तो हम माइनस साइन लेते हैं। पोल के लेफ्ट साइड अगर कोई डिस्टेंस माप रहे हैं तो माइनस, पोल के राइट साइड में किसी का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो दैट इज पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल, यू यहाँ पे है, डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, दिस इज ए बी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज फ्रॉम दिस टू दिस। अब इट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, लेफ्ट साइड में है, तो ये जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किस वर्ड से, अल्फाबेट से यूज करते हैं? u, एंड u इज नेगेटिव व्हेन इट इज केप्ट लेफ्ट साइड। अब माथे में पूरा फिट कर लो अच्छे से कि u इज बाय डिफॉल्ट नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हर समय लेफ्ट में ही है। ऑब्जेक्ट कभी हम लोग यहाँ से लाके किए थे स्टार्ट कि लाइट यहाँ से आ रही है, लाइट तो हर समय उधर से ही आ रही थी। तो u बाय डिफॉल्ट आपको नेगेटिव लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल देगा एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। तो ऑब्जेक्ट इज केप्ट 25 सेंटीमीटर, तो आपको u 25 सेंटीमीटर स्टूडेंट लिखते हैं। इट इज 25 और माइनस 25, इट इज केप्ट 25 सेंटीमीटर, यानी यू हैव टू टेक माइनस। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या साइन पकड़ेंगे? माइनस ऑलवेज। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? u। okay, now listen, next image। कन्वेक्स का अभी बनायो तो कन्वेक्स याद करो। कन्वेक्स में मिरर इमेज, इस साइड इमेज बन रहा था कि उस साइड इमेज बन रहा था? एक फोकस पे बना था और एक इतना सा बना था, दो, तो दोनों इस साइड बना, तो इमेज इज पॉजिटिव इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो इमेज का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं v। इमेज डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इमेज डिस्टेंस को v बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? u। एंड इमेज डिस्टेंस इज v। v इज ऑलवेज नॉट पॉजिटिव। v थोड़ा दिमाग पे लगाना पड़ेगा। ओ, ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में तो इमेज राइट साइड में बन रहा है, तो v पॉजिटिव। ये तो कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर में 5 रे डायग्राम में v पॉजिटिव नेगेटिव, सिर्फ लास्ट वाला रे डायग्राम में इमेज इधर बना था पॉजिटिव। 6 रे डायग्राम में से 5 उधर बना था, एक रे डायग्राम में इधर बना था, तो 5 में v जो होगा नेगेटिव, एक रे डायग्राम में v पॉजिटिव। ठीक है, तो ये डिस्टेंस का मतलब समझ आया मनजोत? पोल से अगर लेफ्ट साइड जाओगे तो माइनस या प्लस, माइनस। पोल से इस साइड जाओगे पॉजिटिव। तो दिस साइड डिस्टेंस मेजर्ड इन नेगेटिव, दिस साइड डिस्टेंस मेजर्ड इन पॉजिटिव। नाउ हाइट, हाइट मतलब साइज। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई है, साइज ऊपर बन रहा है तो इट इज पॉजिटिव। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कोई बन रहा है यानी इन्वर्टेड इमेज, तो दैट इज नेगेटिव। ऑब्जेक्ट को हर समय हम लोग इरेक्ट बनाए हैं कि ऑब्जेक्ट को हर समय नीचे से बनाए हैं? ऑब्जेक्ट को कभी ऐसा बनाया है, दिस इज माई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट इरेक्ट, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर ही खड़ा करवाएं। कभी नहीं, हम लोग क्यों कोई ऑब्जेक्ट को उल्टा ही दिखाएंगे? अगर दिखाओगे तो कुछ इमेज कुछ और ही बनेगा। ऑब्जेक्ट हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड ऑब्जेक्ट हाइट इज h is always positive because it is always erect. Now image height,
इन अभी जो बनायो कन्वेक्स मिरर में, उसमें दो इमेज बनायो, दोनों वर्चुअल इरेक्ट बनायो, तो इमेज हाइट फॉर कन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो पॉजिटिव, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इरेक्ट इमेज बन रही है। इरेक्ट, इरेक्ट मतलब हाइट पॉजिटिव। अब बताओ रियल इन्वर्टेड किस में बना था? कॉन्केव मिरर में। 5 रे डायग्राम में इन्वर्टेड उल्टा बन रहा था, कोई बहुत नीचे कोई इतना नीचे। तो हाइट ऑफ द इमेज इज नेगेटिव इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर, बट हाइट ऑफ द इमेज इज पॉजिटिव इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो अगर इधर ऐसे खड़ा है तो पॉजिटिव, ऐसे खड़ा है तो नेगेटिव, इस साइड है तो क्लियर। सिर्फ ऊपर नीचे दायां बायां इतना याद रखना है। पोल के इस साइड, पोल के उस साइड, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। क्लियर। तो साइन कन्वेंशन को माथे में रख के हम लोग को बनाना है, क्या बनाना है? सम्स। अगर मैं बोलूं, सुनो लोकेश, an object is kept 30 centimeter from the pole. An object is kept 30 centimeter from the pole. तो बताओ गिवन में मैं क्या लिखूंगी? -30 centimeter. Now the image is formed 30 centimeter in case of concave mirror. कनकेव मिरर में इमेज 30 सेंटीमीटर पे ही बना। बताओ कनकेव मिरर में इमेज किधर बनता है? इस साइड की इस साइड? इस साइड बन रहा है। 5 इधर, 1 इधर था, तो V इज ऑल्सो -30 सेंटीमीटर, क्योंकि कनकेव है, इमेज इधर ही बनता है। वापिस बताऊं, तुम अगर रे डायग्राम इसलिए मैंने आज कहा था प्रैक्टिस करके आना बाबू, क्योंकि साइन लगेगा। कनकेव मिरर में इमेज इधर बना रहे थे कि इधर बना रहे थे? सब इधर बना रहे थे। तो अगर मैं बोलूं इमेज इज फॉर्म्ड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल इन केस ऑफ कनकेव मिरर, तो सबसे पहले मिरर में अंडरलाइन करना, कनकेव मिरर, इमेज किधर बन रहा है? लेफ्ट साइड। तो इमेज यानी V 30 सेंटीमीटर, सिर्फ 30 लिखने से 0 मिल जाएगा, क्योंकि सम्स का कोई मतलब नहीं है। यू विल लूज योर 5 मिनट्स एंड ऑल्सो स्कोर्स। तो 30 सेंटीमीटर के सामने माइनस लगेगा, क्योंकि कनकेव मिरर में इमेज बन रहा है। लास्ट, फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर में फोकल लेंथ, अब बताओ कनकेव मिरर में फोकस किधर था? इधर फोकस बनाते थे कि इधर फोकस बना रहे थे? इधर। तो फोकल लेंथ लेफ्ट साइड है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? तो फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, यानी -15 सेंटीमीटर यू हैव टू पुट। तो प्लस माइनस दोनों ध्यान में रखना पड़ेगा। अब बताओ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर, पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव लोगे? ऑब्जेक्ट का भी तुम ऐसे रखे हो, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट का हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट इज 5 सेंटीमीटर, इमेज हाइट इज also 5 centimeter in case of concave mirror. Image height inverted है कि erect है? concave mirror, concave mirror inverted बनता है कि erect बनता है? convex से तो erect है, concave क्यों है? ताले inverted, inverted माने उल्टो, ताले height क्या बनाना पड़ेगा? -5 सेंटीमीटर inverted। क्लियर। अब बताओ तो ये कौन सा रे डायग्राम है, देख के बता सकते हो? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। कौन सा ये रे डायग्राम में ये था? डिस्टेंस भी सेम, हाइट भी सेम। एट सी पे जब रखे थे हम, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सी द इमेज इज फॉर्म्ड एट सी, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, तो ये कौन सा रे डायग्राम का सारा किस्सा होगा? एट सी वाला। अब ये सम्स तभी कर पाओगे, राजा तभी बन पाओगे, अगर तुम रे डायग्राम तुम्हारा सर पे घूमेगा, ठीक है? नहीं तो हर समय यही फंसोगे। तो ये वाला हम लोग सम्स करेंगे। अब पहले यूजेस पढ़ा देती हूँ, गो। अभी मैं जाने नहीं दूंगी, यूजेस पढ़ाऊंगी देन। यूजेस
वेयर इज लाइट, सी लाइट है, आई थिंक लाइट वी हैव नॉट डाउनलोडेड. यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, लिखो यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर. नंबर 1, ठीक है. सबसे पहला यूज इन टॉर्चेस, सर्च लाइट, टॉर्चेस, सर्च लाइट, कॉमा व्हीकल हेडलाइट्स, व्हीकल हेडलाइट्स. टॉर्च देखे हो कभी? टॉर्च ऐसे जलाते थे. सर्च लाइट देखे हो, ऐसे सर पे ऐसे सर्च लाइट होता है कोल माइन वगैरह में, कोयला में. अच्छा, व्हीकल हेडलाइट देखे ही हो. क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर में पैरेलल बीम ऑफ लाइट, सीधी लाइट जाती है. क्यों? बिकॉज टू गेट पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल जाएगा तो लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल जाएगा तो बहुत दूर तक दिखेगा हम लोग को इमेजेस. नंबर 2, कॉनकेव मिरर में एनलार्ज इमेज दिखता है कि कॉनकेव मिरर में डिमिनिश ही ज्यादातर होता है? नहीं नहीं, एनलार्ज भी होता है, लेकिन कन्वेक्स में कभी एनलार्ज नहीं है. कन्वेक्स में एक हाईली डिमिनिश है, एक डिमिनिश है. कॉनकेव मिरर में बड़ा इमेजेस दिखता है, एनलार्ज, हाईली एनलार्ज. तो बड़ा इमेज क्या है? डेंटिस्ट यूज करता है टीथ देखने के लिए. शेविंग मिरर वाला यूज करता है क्या देखने के लिए? फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. यूज्ड इन शेविंग मिरर. तो सेकंड, यूज्ड इन शेविंग मिरर. यूज्ड बाय, तीसरा कौन यूज कर रहा है? यूज्ड बाय डेंटिस्ट. क्यों डेंटिस्ट यूज करता है? टू सी लार्जर फेस ऑफ इमेज. फोर्थ लास्ट, इमेज ऑफ लार्जर फेस ऑफ इमेज, लार्जर फेस ऑफ इमेज ऑफ टीथ, पेशेंट के टीथ का. लास्ट, टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट. सनलाइट को अगर एक ही जगह फोकस करना है, टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट इन सोलर फर्नेस. सोलर फर्नेस देखो, आजकल सोलर फर्नेस वगैरह बहुत चल रहा है. आजकल लोग सोलर पैनल लगा रहा है, बड़ा बड़ा सिस्टम चेंज हो रहा है. तो सोलर पैनल में जो मिरर यूज करता है ताकि सनलाइट उस रेज पे पड़े, तो वहां कॉनकेव मिरर, ताकि लाइट पैरेलल बीम ऑफ लाइट आके एक जगह फोकस करे. तो कॉनकेव मिरर में बड़ी साइज दिखने के लिए हम यूज करते हैं. डेंटिस्ट, शेविंग मिरर, बिग साइज, एनलार्ज, डिमिनिश नहीं. ठीक है, तो ये ज्यादातर बिग छोटी चीज को बड़ा देखने के लिए हम कॉनकेव मिरर यूज करते हैं. कन्वेक्स का अलग कुछ है, ये लिख लो पहले. बाबू डन. अब कन्वेक्स मिरर, सुनो, कन्वेक्स मिरर बनाई छोटी चीज दिखाता है. इधर एक बार इसका यूज देख लो, फिर हम लोग अपने आप छोटा छोटा इमेज बना देता है, डिमिनिश, लेकिन एरिया पूरा कवर करता है, पूरा एरिया कवर करेगा. जैसे एग्जाम्पल, तुम लोग
गाड़ी के रियर व्यू मिरर में देखना पूरा ट्रैफिक दिखता है पीछे, भले इन गाड़ियां छोटी हो जाती है लेकिन पूरा इमेज दिखता है कि इस साइड कौन साइकिल आ रहा है, इधर कौन सा बस है, इधर कौन सी, पूरा। शॉपिंग मॉल्स में एक जगह मिरर ऐसा रहता है जहां से मुझे पीछे का पूरा एरिया दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल सीसी कैमरा में मैं अगर देखूं तो मुझे पूरा एरिया दिखेगा, तो तुम लोग छोटे छोटे दिखोगे बट वाइडर एरिया कवर हो रहा। तो ऑल्दो डिमिनिश्ड बट इरेक्ट एंड वाइडर फील्ड, दो इसका फैसिलिटी, एक तो इरेक्ट दिखेगा, उल्टा नहीं होता, कन्वेक्स में इन्वर्टेड नहीं है क्योंकि दो रे डायग्राम बनाया दोनों में इरेक्ट आया है, ऑल्दो डिमिनिश बट इट इज इरेक्ट एंड गिव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। तो why it is used in rear view mirror in the vehicles? To see wider field of traffic behind the driver. Why it is used in shopping malls? Why it is used in metro stations? अलग अलग जगह पे to see wider field of view, shopping malls वगैरह में. Why it is used in CC cameras? To see wider field of views, security purpose के लिए भी. Clear? तो ये चीज अगर ताजमहल को पूरा पीछे से देख रहे हैं तो कौन सा मिरर दिखोगे, यहाँ से पूरा पीछे का दिखे, कॉन्वेक्स। बैठाओ। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं नंबर 1। तो बताओ कॉन्वेक्स मिरर का पर्पस क्या है? वाइडर फील्ड देखने के लिए। नंबर 1, इन रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, इन रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। कल सुबह कितने बजे आना है? इट गिव्स वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देता है। ये सारा कुछ लिखा हुआ है। और तो यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, हम लोग लिख लेते हैं इन शॉपिंग मॉल। और बताओ सीसीटीवी कैमरास। और बताओ तो बाबू अभी क्या क्या बताया? मेट्रो स्टेशंस। और तो ये सारे एग्जाम्पल है जहां। तो इसका मेन पर्पस क्या है लिख देती हूँ। दो डिमिनिश्ड लेकिन कैसा दिखता है? एडवांटेज क्या है? बट कैसा दिखता है? वेरी गुड। एक्टर और एडवांटेज इरेक्ट एंड वाइडर फील्ड, ये दो एडवांटेज है, इरेक्ट और वाइडर फील्ड। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि बताओ ये कौन सा मिरर यूज हो रहा है, तो जब भी देखोगे इमेज को बड़ा करना है तो कनकेव, इमेज भले छोटा हो रहा है लेकिन पूरा एरिया कवर करेगा तो कन्वेक्स। क्लियर? तो ये सिर्फ यही जो है वही से क्वेश्चन नहीं आ सकते, यूजेस को चेंज भी हो सकता है। इजी क्वेश्चन आया तो राइट यूजेस बोल देगा, या क्वेश्चन यहाँ से भी आता है व्हाई इन रेयर व्यू मिरर वी यूज कन्वेक्स मिरर, which mirror used in rear view mirror of the vehicles and why? 2 mark question. Which mirrors are used in number 1, 2, 3, 4 एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है। क्लियर? अब कल सुबह तक, आज तो तुम लोग बहुत कुछ मिसिंग किए हो, रे डायग्राम, रात को चाहे जागो या सुबह उठो, सुबह रे डायग्राम्स कंप्लीट करके आना। 6